Hello students, so today we are going to start chapter 5 acid, bases and salts. Okay, first we'll study what are acids, then properties of acids, how many types of acids are there, strength of acids, then uses of different acids. Okay, then we'll learn about bases, what are the different types of bases, strength of different bases, what are the uses of bases. Then we'll study about the salts, how salts are formed. Okay, and what are different types of salts which are used by us. And then lastly there are some other topics as indicators, natural indicator, universal indicator, synthetic indicators. Okay, so this will study as one by one properties of salts, water of crystallization. Okay, so let's start. So first, what are acidic substances? So acid and base, इन दोनों में these two things are opposite to each other. The properties of these two things, acids and base, they are opposite to each other. So in simple words, the substances which taste sour, जो खट्टा है, ओके, जो टेस्ट में खट्टा है, तो उन सब्सटेंसेस को हम एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे. ओके, तो सब्सटेंसेस कंटेनिंग एन एसिड, दो उन सब सब्सटेंसेस जिनमें एसिड होगा वो सब सब्सटेंस को हम बोलेंगे एसिडिक सब्सटेंसेस. Substances containing an acid are called acidic substances, and these acids are of two types: mineral acids and organic acids. Now, mineral acids are those acids which are synthetically prepared or prepared by man in the laboratory or in the factories. Okay, and organic acids are those acids which are found in plant or plant products. Okay, such as फ्रूट्स में होते हैं और जो कुछ कुछ तुम्हारे वेजिटेबल्स में भी होते हैं. सो दोज एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स. सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर मिनरल एसिड्स. So everyone, if you have you listened the name of hydrochloric acid, sulfuric acid? So these are mineral acids. Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are examples of mineral acids that are used in the laboratory. So ये सब acids they are prepared in the laboratory and are mostly used in the laboratory. जो हम जो केमिकल रिएक्शन जब स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे आफ्टर 10th, सो जो लैब में, केमिस्ट्री लैब में मोस्टली एसिड्स के साथ हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सो दोज एसिड्स आर द मिनरल एसिड्स. सो दिस एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन नेचर. एंड इसको मिनरल एसिड्स इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर मेड ऑफ मिनरल्स. सो दिस chlorine, nitrogen, then sulfur, these are minerals. So and these exist in nature, natural minerals, and these minerals are found in nature itself. So this is why they are also called as mineral acids. Okay, now let us come to the organic acids. Organic acids occur naturally in animal and plant materials. As I have said, organic acids animal या plant में होते हैं. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विद देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो. अभी देखो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कहाँ कहाँ पे वो मिलता है. सो ग्रेप्स, इज यू नो ग्रेप्स का स्वाद कैसा है, वो खट्टा है ना, सोर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टार्टारिक एसिड. देन विनेगर कहाँ पे यूज़ होता है, विनेगर इज़ यूज्ड इन अचार में यूज़ होता है, फिर पनीर बनाने के लिए यूज़ होता है, और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होता है. सो विनेगर इज ऑल्सो व्हाट सोर इन टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स एन एसिड, एसेटिक एसिड. देन स्टिंग्स ऑफ एंड्स एंड बीज. बी यू नो, जो मधुमक्खियाँ होते हैं वो जब काटते हैं तो जलता है ना स्किन में. सो दैट इज़ ड्यू टू उनमें उनके जो स्टिंग्स है, सो देयर एन एसिड इज प्रेजेंट नोन एज फॉर्मिक एसिड. स्टिंग्स ऑफ एंड्स, देयर सम रेड एंड्स आर देयर. जब वो बाइट करता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और बहुत इचिंग होता है. सो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ उनके जो स्टिंग्स है उनमें एक एसिड होता है.
so they inject that acid into our skin. This is why we feel irritated. देन एप्पल्स में होता है मेलिक एसिड, लेमन, ऑरेंजेस ये सब में होता है साइट्रिक एसिड. मिल्क में भी एसिड होता है लैक्टिक एसिड, और स्पिनाच में होता है ऑक्सिलिक एसिड. सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज वेयर ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड. सो मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड में यही डिफरेंस है. मिनरल एसिड है, दीज आर मेड ऑफ इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग केमिकल्स, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड्स है दीज आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वो प्लांट या एनिमल में ही होते हैं. देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. एन एसिड में भी स्ट्रॉन्ग और इट में भी वीक. ओके, उसका स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होता है. हर एक एसिड का स्ट्रेंथ या जो हम बोलेंगे उसका क्षमता या हम बोल सकते हैं उसका पावर सेम नहीं है. कुछ एसिड्स बहुत मतलब खतरनाक है और कुछ एसिड्स ज़्यादा खतरनाक नहीं है. सो देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो on which the strength of an acid is determined. So acids can be strong or weak. स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रेंथ बोला गया है. एक एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक एसिड भी हो सकते हैं. सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाईली करोसिव एंड कैन कॉज सिवियर बर्न्स. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. वो अगर ड्रेस में गिर जाता है या हमारे स्किन में गिर जाता है, वो क्या होता है, बर्न हो जाता है, वहाँ पे स्किन बर्न हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी कंसेंट्रेटेड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. These acids are highly reactive towards metals and for that reason cannot be stored in metal containers. और ये सब acids को sometimes if you visit the chemistry lab in schools or colleges, और यहाँ पे भी देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो एसिड्स को कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड कोई भी एसिड हो, उनको हम ग्लास के कंटेनर में रखते हैं. वी डू नॉट स्टोर इन द मेटल कंटेनर्स बिकॉज the metal containers will be completely destroyed by the acid. Okay, the acid will eat up the metal container, but acid is cannot react with the glass. This is why the acid can be kept in a glass container. So they are stored in glass or ceramic container. ceramic मतलब जो मिट्टी का जो बर्तन है होता है ना, such as कप, प्लेट, जो जिस सब्सटेंस से बना होता है सिरामिक्स. सो मिट्टी का जो बर्तन है उसमें भी हम रख सकते हैं, लेकिन जनरली वो ग्लास के ऐसे कंटेनर में ही रखा जाता है लेबोरेटरीज में. सो दिस मिनरल एसिड्स ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट क्लोथ्स एंड वुड. सो ये मिनरल एसिड एज आई हैव सेड, ये अगर कपड़ा में गिर जाता है तो इट कैन टीयर और इट कैन बर्न द क्लोथ्स ऑल्सो एंड इट कैन कॉज डैमेज टू द वुड्स ऑल्सो. So hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid are example of strong acids. So these are example of strong acids: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Okay, so mainly we can say जो mineral acids है they are very strong acids and we cannot eat mineral acids. This keep in mind. We can eat organic acids. Organic acid का जो organic acid जिन भी जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में भी होते हैं, वी कैन ईट देम, बट वी शुड नेवर टेस्ट द मिनरल एसिड्स बिकॉज इट मे कॉज बर्न्स और इंजुरी और डेथ. ओके, सो वीक एसिड्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो नाम से ही पता चलता है वीक एसिड उनमें इतना स्ट्रेंथ या पावर नहीं होता है एंड दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मुकाबले इतना हार्मफुल नहीं होता है. So weak acids are most commonly organic acids. So as I have said, जो weak acids है वो mostly organic acids ही है. Organic acids को ही हम weak acids बोलते हैं. So most of the organic acids are a part of our diet. और जितने भी organic acids है, these are a part of our diet. We eat them, okay, regularly or on a daily basis we eat them. Acetic acid, which is used to make vinegar, is an example of weak acid. So acetic acid से vinegar बनते हैं and it is an example of weak acid. So vinegar is typically 3 to 8% solution of acetic acid in water. So vinegar कैसे बनता है? 3 to 8% acetic acid जब पानी में डाल देते हैं, जो solution जो बनता है that is typically उसको हम vinegar बोलते हैं. Solution of acetic acid in water कितना? 3 to 8%. 3 to 8% acetic acid और
बाकी वाटर में हम जब उसको ऐड करेंगे, दैट सॉल्यूशन which will be formed is known as the vinegar. The fizzy drinks such as the fizzy drinks and soda contain a carbonic acid which gives them a pleasant taste. Carbonic acid is not an organic acid, it is a mineral acid and a weak acid. So जो कोल्ड ड्रिंक्स जब हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर, उनमें एक टेस्ट एनहेंस करता है, वहाँ पे भी कुछ एसिड्स ऐड किया होता है, एंड दैट एसिड्स इज़ द कार्बोनिक एसिड. एंड कार्बोनिक एसिड वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इट इज़ ए मिनरल एसिड बट वीक एसिड. और इस मिनरल एसिड को हम खा सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए वीक एसिड. अदर मिनरल एसिड्स वी कैनॉट कंज्यूम इट. सो कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर टू एनहेंस द टेस्ट एंड वी कैन ऑल्सो ईट देम. सो ये बनता कैसे है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब कार्बोनिक एसिड बनते हैं. हाँ, अभी देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो झाग निकलता है ना, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड ओनली, बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर. और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वहाँ पे टेस्ट को एनहेंस करने के लिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है, ठीक है. एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद द वाटर ऑफ द, जो वाटर रहेगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स में तो वाटर रहेगा ही, तो उस वाटर के साथ रिएक्ट करके वो एक एसिड फॉर्म करता है, दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड. ओके, वो डकार भी आता है ना कभी कभी, वो गैस भी फॉर्म हो जाता है आफ्टर टेकिंग द कोल्ड ड्रिंक्स. सो दिस इज ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड. Next, properties of acids. So some of the characteristic properties of acids are, so acids के कुछ properties हम study करेंगे. So acids are sour to taste and are corrosive in nature. So I have already said एसिड का टेस्ट कैसा होता है, वो sour होता है, मतलब वो खट्टा होता है, एंड corrosive in nature. corrosive मतलब जो वो जहाँ पे भी गिरेगा, जिस सरफेस पे भी गिरेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा. Along with sour taste, acids also have the ability to corrode metals such as iron and aluminium. So iron और aluminium ये सब चीज़ को भी एसिड डैमेज कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. मेनली द मिनरल एसिड्स. For this reason, acids are generally stored in glassware. I have already said. Okay. Mineral acids such as nitric acid and sulfuric acid can burn human tissues upon contact and damage clothes and paper etc. Thus one should handle these acids with care. जो मिनरल एसिड्स है HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, एंड अगर हमारे स्किन में गिर जाए, शरीर में गिर जाए, वहाँ पे बर्न होगा, इंजुरी होगा, जल जाएगा स्किन. दिस इज़ वाई वी शुड हैंडल दिस एसिड्स विथ ग्रेट केयर. ओके. सो corrosive मतलब टेंडिंग टू डिस्ट्रॉय स्लोली बाई केमिकल रिएक्शन. corrosive मतलब ये corrosion है, corrosion मतलब डिस्ट्रक्शन ही होता है बाई केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट, सो एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. सो जितने भी एसिड्स है, सो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर फॉर्म्स a major characteristics of acids, because without water acid cannot be formed. So acid जब एक एसिड बनाता है, so that is a part of it is water, because water नहीं रहेगा तो वो एसिड ही नहीं कहलाएगा, ठीक है. So acids are soluble in water. Most acids dissolve in water either at room temperature or heating to form a clear solution. So acids को क्या करते हैं, हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, एंड वो इधर रूम टेम्परेचर में अगर डिजोल्व होता है तो ठीक है, और उसको हम हीट करते हैं एक क्लियर सॉल्यूशन बनाने के लिए. सो नेक्स्ट, विनेगर जो एक वीक एसिड है, इट इज़ टिपिकली 3 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. तो विनेगर कैसे बनता है, जब 3 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में डालेंगे तब जो सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज़ द विनेगर. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड्स कैन बी आइदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड. नाउ this should not be confused with strong and weak acids, ठीक है. हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो concentrated acids है उसको हम strong acids बोल सकते हैं, एंड जो
डाइल्यूट एसिड है उसको हम वीक एसिड भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू सी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर ऐड किया गया है उस एक पर्टिकुलर एसिड को बनाने के लिए, दैट विल डिटरमाइन द strength of the acid. Okay, now if amount of water is more in an acid, it is called a dilute acid. So if एक कोई भी एसिड बनाने के लिए, suppose if we use more amount of water, then the acid which is formed will be called a dilute acid and its strength will be less. Okay, so it will be called a weak acid. And if the amount of water is less, it is called a concentrated acid. So if अगर कोई भी एसिड बनाने के लिए जो वाटर का जो परिमाण होगा वो अगर कम यूज़ करेंगे हम, तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इट विल बी मोर पावरफुल. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सम एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट. सो देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड. जो भी एसिड हो, अगर उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे. अगर कोई भी एसिड में वाटर का अमाउंट कम है, देन विल से दैट एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. So dilute hydrochloric acid is used in various industries. They use heating applications. It is applied to remove deposits from inside of the boilers. So ये boilers क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स एक अरेंजमेंट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो सब्सटेंसेस है उसको बॉयल करते हैं, उसको हीट अप करते हैं. सो बॉयलर्स में अभी क्या होता है, जब हीट अप करते गया वहाँ पे वो वहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स सा बन जाता है, दैट इज़ अनयूज़फुल. सो दैट इज़ ए वेस्ट डिपॉजिट बन जाता है, और उस वेस्ट डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर. सो टॉयलेट क्लीनर्स में भी, टॉयलेट क्लीनर जो होता है हमारे जो घर में जो जनरली यूज़ होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है. ठीक है. और then sulfuric acid. Sulfuric acid is an important industrial chemical that is called the king of chemicals. और sulfuric acid को हम king of chemicals बोलते हैं because it is most widely used. और इसका भी dilute and concentrated, सभी एसिड का, मिनरल एसिड का, they have dilute and concentrated forms. Okay. So some of its major uses are sulfuric acid is used in car batteries. सिर्फ कार बैटरीज में ही नहीं, जितने भी बैटरीज है जो हमारे घर में जो यूज़ होता है, इन्वर्टर बैटरी, वहाँ पे भी एसिड यूज़ होता है. एंड उस एसिड को वो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड. सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स. जो कलर्स है, कलर इंडस्ट्री में यूज़ होता है. ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में दवाई, डाइज मतलब कलर ही है ये. एंड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड. इट इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. देखो अभी क्या होता है, कभी कभी जो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स है उनमें एक टाइप का करोशन हो जाता है, सम ब्लैक और ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है कभी कभी. सो गोल्ड स्मिथ क्या होता है, गोल्ड स्मिथ कौन है, गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलरी बनाता है ना, जो ज्वेलरी का शॉप है, उस इंसान को जो लोग काम करते हैं, who makes jewelries is known as goldsmith. So वो लोग क्या करते हैं, they wash the instrument, they wash the jewelries, gold such as silver jewelries, and वहाँ पे अगर कुछ उसका कलर फेड हो जाता है या कोई डिपॉजिट, ब्लैक कलर का कोई डिपॉजिट बनता है, सो वो क्लीन करते हैं एक सब्सटेंस से, एंड दैट इज़ द HNO3 नाइट्रिक एसिड. कभी अगर ज्वेलरी में अगर विजिट करोगे तो यू कैन सी दैट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, सच एज एमोनियम नाइट्रेट. ओके. सो फर्टिलाइजर्स
और भी बहुत सारे यूजेस है, आपके यहाँ पे 2 ही यूजेस दिया गया हुआ है। देन एसिटिक एसिड, सो एसिटिक एसिड इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ये भी याद रखना ये सब। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HNO3, ठीक है, ये सब याद रखना है। सो एसिटिक एसिड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर। सो एज वी हैव सेड, तो विनेगर कैसे बनता है, 3 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो विनेगर इज यूज टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, वो फूड में यूज़ किया जाता है टू एनहेंस इट्स फ्लेवर एंड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो अचार है, अचार को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम उस अचार में विनेगर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई it is can also be used as preservatives. Then it is also used as a cleansing agent in products meant for cleaning windows, floors, utensils, etc. So अभी बहुत सारे स्प्रेज आते हैं ना, सच एज द कॉलिन हो गया, ग्लास क्लीनर जो होता है ना, ग्लास क्लीनर, टाइल्स क्लीनर, ओके, देन फ्लोर क्लीनर, उनमें भी ये यूज़ होता है एसिटिक एसिड। सो ये एक क्लिनजिंग एजेंट की तरह ही भी काम करता है। इट हैज़ टू रिमूव स्टेन्स ऑन वुड वर्क, ओके। वुड वर्क मतलब सपोज कोई भी एक वुड का जो फर्नीचर होता है वहाँ पे अगर कुछ दाग वगैरह लग जाए तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड, फर्नीचर्स एंड कारपेट्स, ओके। सो जो क्लीनिंग जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो फ्लोर, सपोज टाइल्स का फ्लोर या जो वुडन थिंग्स, विंडोज़, ग्लास, ये सब क्लीन करने का जो सॉल्यूशंस आता है उनमें भी हम यूज़ करते हैं। देन मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट लिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। An acidic environment either slows down their activities or can also kill them. Okay, so this is why you will find vinegar in many commonly packaged foods, pickles, sauce, ketchup, etc. So जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है such as बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में उनका ग्रोथ नहीं होता है। सो दे कैनॉट लिव एंड फ्लॉरिश इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में उनका ग्रो नहीं होता है। सो इन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड द स्लोज डाउन देयर एक्टिविटीज़, उनका जो एक्टिविटीज़ है, ग्रोथ, फिर एक उनका जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, उसको स्लो कर देता है और कैन ऑल्सो किल देम, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई, सो विनेगर एक एसिड है, उसमें एसिटिक एसिड होता है, इसलिए विनेगर इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पैकेज्ड फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं, सच एज जो पिकल्स, सॉस, केचप्स, इनमें यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिडिक सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक सब्सटेंसेस। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक सब्सटेंसेस। सो लाइक एज जो एसिडिक बेसिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ए बेस, ओके। और बेस क्या है, बेस का जो टेस्ट है, द टेस्ट ऑफ ए बेस, वो उसको क्या बोलेंगे, वो बीटर, वो तीता होता है, तीता, वो स्वाद में कड़वा होते हैं, ठीक है। सो एसिड खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है, बीटर। सब्सटेंसेस कॉन्टेनिंग ए बेस, और वो सब सब्सटेंस जिनमें बेस प्रेजेंट है, दोज आर कॉल्ड एज बेसिक सब्सटेंसेस, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH जहाँ पे भी दिखेगा वो सब्सटेंस बेस होगा, ठीक है। और H जहाँ पे भी दिखेगा उसको एसिड मान लो, ठीक है। और OH जहाँ पे भी दिखेगा वो बेस है। हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप जहाँ पे रहेगा वो बेस है जनरली, ओके। आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसेस यूज इन द लेबोरेटरी। सो कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग व्हाइट आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ bases. So bases may have strong and irritating odor and should be used with caution as they can harm the skin and eyes. So acid के तरह भी बेस भी बहुत सारे बेस भी होते हैं, and some bases हम
खाते भी है, some we use chemically also. So bases have a strong and irritating taste. उसका जो ऑर्डर है अगर नाक में चला जाए ना, वो बहुत मतलब जो हमारे नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेट करेगा. वी विल फील इरिटेटेड. ओके, सो एंड दे कैन हार्म द स्किन एंड आईज ऑल्सो. So next, so just as strong acids and strong weak acids, we have strong base and weak bases. Like acids, bases can be strong or weak. The strong bases, as you know, these are very corrosive and can burn the skin. अगर स्किन में गिर जाए तो स्किन बर्न होगा. दिस बेसिस शुड बी हैंडल केयरफुली. उसको केयरफुली हैंडल करना है हमको. कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड कॉस्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड करोसिव बेसिस. सो दिस टू बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. ठीक है. These are strong and corrosive bases because they are harmful, they are very powerful, they can burn the skin, cause skin injury. Okay, and they are irritating also to our nose. On the other hand, some hydroxides such as copper hydroxide, zinc hydroxide, ammonium hydroxide are weak bases. So ये सब जो बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसेस है. उनका स्ट्रेंथ कम है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिजोल्विंग एमोनिया इन वाटर. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है यहाँ पे दिया हुआ है. जब एमोनिया को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे सो इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो next come to properties of bases. Some of the characteristic properties of bases are bitter to taste. So as I have said, ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है वो हम कैसे टेस्ट करेंगे उसका दूसरा प्रोसेस है. उसके लिए हम मतलब टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि ये इसका टेस्ट सोर है तो ये एसिड है, इसका टेस्ट बिटर है तो ये बेस है. ऐसा नहीं करना है. उनके लिए हमारे पास सेपरेट चीज़ है, वो इंडिकेटर्स है, उसको हम बाद में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, सॉल्यूशंस ऑफ बेसेस आर स्लिपरी टू टच. सपोज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉप में यूज़ करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट में. वो कैसा होता है, ऐसा स्लिपरी होता है ना. ओके. और कोई भी फ्रूट्स जो करेला देख लो, करेला को अगर ऐसे टच करोगे ना, इट विल फील स्लिपरी टू टच. ओके. एंड एनी और कोई भी ऐसा देयर आर मेडिसिन्स सच एज गिलोय. एक प्लांट का वो स्टेम होता है प्लांट का, वो एक प्लांट भी नहीं है, वो क्रीपर्स है. सो उसको हम ओवरनाइट पानी में भिगो कर खाते हैं. सो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड योर पेरेंट्स माइट हैव. ओके. सो वो भी उसका टेस्ट भी बिटर है और उसको जब हम टच करेंगे वी फील स्लिपरी. So if you apply a drop of 2 or very dilute solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide on your finger and then rub, they will feel slippery. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 या 3 ड्रॉप्स अगर हम फिंगर में लेकर उसको ऐसे घुमाएंगे तो इट विल फील स्लिपरी टू आवर हैंड. ओके. बेसिस मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. सो एज वी हैव सेड, एसिड्स, जितने भी एसिड्स है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है. बट ऑल बेसिस आर नॉट डिजोल्व इन वाटर. सो बेसिस मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर. सो बेसिस दैट कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज. और जो बेसिस पानी में डिजोल्व होता है उनको एक स्पेशल नाम दिया गया हुआ है, उनको क्या बोलते हैं हम, एल्काली. ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के लिए. वाटर एल्कालीज. सो बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कालीज. सो सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस और एल्कालीज. सो यहाँ पे हम जितने भी स्टडीज़ करेंगे बेसिस के वो एल्कालीज ही होंगे, मतलब दोज बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, उसके बारे में ही हमें पढ़ना है मेनली. सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस और वाटर सोल्यूबल बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस bases dissolve in water, this is why they are known as alkalis. So use of bases.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक लाइम, इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द सॉइल। देखो अभी एक सॉइल कल्टीवेशन के लिए एक न्यूट्रल सॉइल होना ज़रूरी है। इन फील्ड्स, खेत में जो सॉइल है या कोई भी आप गार्डन बना लो, वहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ के लिए द प्लांट नीड्स एन न्यूट्रल मीडियम। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक रहा या ज़्यादा बेसिक रहा तो प्लांट ग्रोथ अच्छा से नहीं होगा। तो अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द सॉइल। अभी न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज क्यों बोला गया है, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड द एसिड्स एंड बेसिस देयर प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। जो एसिड है वो बेस का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो बेस है वो एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, सो बोथ दिस टू थिंग्स विल न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इट इज एन इंग्रेडिएंट इन व्हाइट वॉश एंड मोटर। सो व्हाइट वॉश क्या होते हैं, जो व्हाइट वॉश मतलब जो वॉल में दीवार में जो पेंट करता है ना, चूना जिसको हम बोलते हैं, उसको व्हाइट वॉश बोलते हैं। ठीक है, सो जो कलर देने में भी वॉल्स में कलर देने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। या देखते हो ना कभी कभी जो सम ट्रीज सम व्हाइट पेंट्स आर गिवन, उसको व्हाइट वॉश बोलते हैं। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So it is a component in the Bordeaux mixture. It is a component of the Bordeaux mixture used for protecting agricultural crops from pests or fungi. So Bordeaux mixture एक ये पेस्टिसाइड है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या करता है, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप में जो पेस्ट्स लगते हैं, सपोज जो फंगी है या बैक्टीरिया है या कुछ और ज़्यादा कुछ इंसेक्ट्स भी है, उस प्लान को सेव करता है। It protects the crops or protects the plants. So that is also made with the help of calcium hydroxide. So it is used in the preparation of dry mixes for painting and decorating. So painting and decorating work में भी हम calcium hydroxide को use करते हैं। Then magnesium hydroxide. So इसको हम सभी कभी ना कभी खा चुके हैं। कभी अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है गैस में, पेट में, तो हम क्या खाते हैं, एंटासिड खाते हैं। लिक्विड आते हैं ना, देखा ना एंटासिड का जो वाइट कलर का लिक्विड होता है, या एक गैस्ट्रिक का टेबलेट खाते हैं हम, तो वहाँ पे भी इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस। क्योंकि गैस कब बनता है हमारे पेट में, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन मोर अमाउंट्स। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होगा हमारे स्टोमक में, अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, एसिडिक फूड ज़्यादा खाएंगे, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू एसिडिटी इन द स्टमक। और तब हम क्या खाते हैं, वी ईट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज एज एन एंटासिड और ए लैक्सेटिव। एंटासिड मतलब एंटासिड एसिड के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, और लैक्सेटिव मतलब वो हमारे स्टोमक को जो रिलीफ फील कराता है, दैट इज़ वाई it's called as laxative. It helps to correct the excess acidity in the stomach. So जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो जो एक्सेस एसिड होगा हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, NaOH. सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल्स। पेपर और टेक्सटाइल में मतलब क्लोथ इंडस्ट्रीज़ में इस यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन होम्स इट इज़ ओकेशनली यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स। सो ड्रेन्स में कभी कभी देखो ना बहुत सारा कुछ डिपॉजिट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज, कुछ सम अननेसेसरी सब्सटेंसेस बन जाता है। सो उनको क्लियर करने के लिए हम कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। सो सॉप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी कॉस्टिक सोडा को मेनली यूज़ करते हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट एसिड्स एंड बेसिस. Now, how can we know that a substance is an acid or a base? So that is done mainly with the help of indicators and
We shall learn about indicators in your next class.